Hello everyone. So in the last class, we derived the Einstein's theory of lattice specific heat of solids. So what we saw in the Einstein theory, we saw that at high temperatures, the Einstein's specific heat equation reduces to the Dulong-Pettit equation, that is a constant equal to 3R for all the solids. However, at low temperatures, we saw that specific heat जो है it decreases with decrease in temperature and it tends to zero as T tends to zero. But still, there was some discrepancy between the experimental curve and theoretical curve at low temperatures. So to overcome these discrepancies at low temperatures, another model was given by another scientist whose name was Debye. Einstein gave the another theory, which is the Debye model of specific heat of solids in the year 1912. Now this theory is most important theory in specific heat of solids, and this is also very important from your examination's point of view. Now, what is a Debye model? In Debye model, what were the different assumptions that Dulong and Einstein ignored? ड्यूलोंग ने क्या assumptions लिए थे? ड्यूलोंग ने assumption लिया था कि जो हमारा solid है, it consists of large number of atoms. Let's say there are capital N number of atoms and they are oscillating simple harmonically. और एक atom का जो motion है वो independent होगा उसके neighboring atoms से. Every atom is vibrating as a single oscillator independently of its neighboring atoms. Debye ने ये assumption लिया था और जो next main assumption उसने लिया था कि ये जो motion है, this is the classical motion. उसने जो ये model था solid का, उस model को classical consider किया था. That means जो energy थी oscillations की, oscillator की, वो continuous energies थी ranging from 0 to infinity. उसके बाद फिर आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी उसने भी यही कंसीडर किया था कि हर एक एटम जो है इट इज वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स और ये जो वाइब्रेशन है दिस इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. बट आइंस्टीन ने क्या डिफरेंट असम्पशन लिया था ड्यूलोंग और पैटिट से? जो डिफरेंट असम्पशन था वो ये था कि ये जो मॉडल है ये क्लासिकल मॉडल नहीं है, क्वांटम मॉडल है. दैट मीन्स हर एक जो मोशन है उसकी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी. फिर उसके बाद अब ये जो नया मॉडल आया डीबाय, इसने क्या एजम्पशन लिए थे? फर्स्ट एजम्पशन तो इसने भी वही लिया था जो ड्यूलोंग और आइंस्टीन ने लिया कि इन दी सॉलिड्स ईच एटम इज सपोज टू वाइब्रेट एज अ सिंगल ऑसिलेटर इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स. कि हर एक जो एटम है वो वाइब्रेट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, ये आइंस्टीन ने बोला था. डीबाय ने क्या बोला कि वो सिंपल हार्मोनिकली तो ऑसिलेट कर रहा है एटम, लेकिन ये जो मोशन है ये इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है. ये जो सिचुएशन है ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी लग रही है. जो नेबरिंग एटम्स हैं उनका भी मोशन का इम्पैक्ट पड़ेगा सारे एटम्स के अंदर जो वाइब्रेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिकली. तो ये डीबाय का जो एजम्पशन था ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हुआ आइंस्टीन से. डीबाय ने he took into account the effect of coupling between neighboring atoms and considered the solid as a continuous elastic body. This is the most important assumption taken by the Debye. एग्जाम में जब ये आएगा डेरिवेशन तो assumptions लिखने जरूरी है. assumptions नहीं लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. डीबाय ने क्या कहा कि एटम्स जो हैं दे आर मूविंग सिंपल हार्मोनिकली, दे आर वाइब्रेटिंग सिंपल हार्मोनिकली, बट दे आर नॉट वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंटली. जो सारे एटम्स हैं दे आर कपल्ड
एक का मोशन जो है दूसरे के मोशन को इफेक्ट करेगा. दे आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और देयर वाइब्रेशंस आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है. सेकेंड assumption क्या था डी बाय का, जो इंटरनल एनर्जी है इंटायर सॉलिड की, instead of residing in the vibrations of individual atoms, जो internal energy है it is basically present in the elastic standing waves being produced because of the vibrations of individual atoms. ठीक है. इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे मेरा एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एटम्स हैं. हर एक एटम जो है वाइब्रेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली. ये भी कर रहा है, 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 पर हर एक का जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है. तो जो भी ये एटम्स जो है, लेट्स से दे आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग. ठीक है. तो ये जो है दे विल रिजल्ट इन दी स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन. तो जो इंटरनल एनर्जी है सॉलिड की वो कहाँ पर लाई कर रही है, वो ये इंडिविजुअल एटम्स के वाइब्रेशंस पे नहीं रिसाइड कर रही, वो प्रेजेंट है इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर जो प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. दिस वाज द सेकंड assumption. थर्ड क्या था, थर्ड वही है आइंस्टीन की तरह, जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं होगी, क्वांटाइज्ड होगी. और यहाँ पर हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये जो स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. इंडिविजुअल. सो in Debye model, the energy of these elastic standing waves, they are not continuous but quantized. And a quantum vibrational energy is called phonon, analogous to photon in electromagnetic waves. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फोटोन होता है, ऐसे ही स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास फोनॉन होता है. फोटोन क्या है हमारा, फोटोन इज द क्वांटा ऑफ लाइट वाइब्रेशंस. उसी तरीके से फोनॉन इज द क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस. लैटिस में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं इसमें जो हमारे पास क्वांटम पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसको फोनॉन कहते हैं. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या रेडिएशंस में हमारे पास जो क्वांटम पार्टिकल होता है उसको हम फोटोन कहते हैं. तो जैसे फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, ऐसे ही जो फोनॉन है इसकी एनर्जी भी h न्यू होती है. फर्क क्या होता है, जो हमारे फोटॉन्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लेकिन जो हमारे पास फोनॉन है दे ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स. ठीक है. जो फोटॉन्स हैं दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट और जो फोनॉन है दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स. एंड दीज वेव्स दे आर इलास्टिक इन नेचर, इसलिए इन वेव्स को हम इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं. तो ये 3 assumptions थे मेन जो डिबाई ने लिए थे. क्या क्या assumptions थे, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. जैसे आइंस्टीन ने बोला था कि हर एक एटम जो है सॉलिड के अंदर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ले रहा है, डिबाई ने भी वही बोला था. पर डिफरेंस क्या है कि अब जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, कपल्ड है. हर एक का वाइब्रेशन दूसरे के वाइब्रेशन को इफेक्ट कर रहा है. सेकंड क्या है, जो सॉलिड की इंटरनल एनर्जी है वो अब एनर्जी नहीं है इंडिविजुअल वाइब्रेशनल एटम की, वो एनर्जी है इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स की जो बन रही है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स. फर्दर इसके बाद डिबाई ने अज्यूम किया जो ये एनर्जी है इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स की, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस बट क्वांटाइज्ड. और ये जो इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स है इसमें जो क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन है उसको हम फोनॉन कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फोटॉन होते हैं. और इसकी एनर्जी जो है वो भी h न्यू होती है लाइक फोटॉन. बस इतना फर्क है दैट फोनॉन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव and these waves are elastic in nature. Now we come to the fourth assumption. The fourth assumption says that
the number of vibrational modes हैं of any kind in the frequency nu and nu plus d nu, it is given by z nu d nu equal to 4 pi v upon v cube nu square d nu. ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम डेंसिटी ऑफ मोड्स से भी रिलेट कर सकते हैं. आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली इसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डी बाय मॉडल को फर्दर एक्सटेंड करेंगे. सबसे पहले फोर्थ अजम्पशन में जो ये जेड न्यू डी न्यू ले रखा है हम इसको डिराइव करेंगे. नाउ ये जेड न्यू डी न्यू क्या है, ये उसी तरीके से है जैसे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर भी मैंने तुम लोगों को एक डेरिवेशन कराया था जीपीडीपी या जी न्यू डी न्यू इक्वल टू, वो भी इसी तरीके से आया था जिस तरीके से हमारा ये आ रहा है, ठीक है. तो वहां पर जीपीडीपी हमारा क्या था, जीपीडीपी हमारी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स थी विच आर लाइंग इन दी मोमेंटम रेंज पी एंड टी प्लस डीपी. यहाँ पर हमारा जेड न्यू डी न्यू क्या होगा, दीज आर, वहां पर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स थी, यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स हैं विच आर लाइंग इन दी फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू. अगर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का तुम्हें थोड़ा सा पार्ट याद है तो तुम्हें याद होगा वहां पे हमने इसी टाइप का एक डेरिवेशन किया था. यहाँ पर भी हम इसको फिर से डिराइव करेंगे. और ये जो जेड न्यू डी न्यू है, अब देखो जो हमारा जो एटम्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशंस की वजह से इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं. अब ये जो स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं इनके कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स हैं हमें वो निकालने हैं, ठीक है. तो वो क्या होता है, दैट इज जेड न्यू डी न्यू विच इज इक्वल टू 4 pi v इंटू न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन v क्यूब. ये अब हम डिराइव करेंगे, ये कैसे होता है. Z nu d nu by definition is the number of vibrational modes lying in the frequency range nu and nu plus d nu. So what is Z nu? Z nu is the number of vibrational modes per unit frequency range. That means Z nu is Z nu d nu divided by d nu. D nu हमारी क्या है, this is the frequency range. और जब मैं इस Z nu को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी तब मेरे पास ये डेंसिटी ऑफ मोड्स बनेगा. डेंसिटी ऑफ मोड्स क्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा गलत लिख रखा है. Z nu is the number of vibrational modes per unit frequency range and density of modes is the number of vibrational modes per unit frequency range per unit वॉल्यूम, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ये जो हमारा कैपिटल V है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है. अगर हम कंसीडर करते हैं कि सॉलिड हमारा क्यूब है, क्यूब का मतलब सारी साइड्स इक्वल है, लेट्स से जो इसकी इक्वल साइड्स है वो कैपिटल L है, तो वॉल्यूम हमारा सॉलिड का हो गया L क्यूब, ठीक है. सो V इज इक्वल टू L क्यूब एंड व्हाट इज दिस स्मॉल v. Small v, this is basically the velocity of propagation of wave through the medium, or you can say is the velocity of sound wave. जो हमारी इलास्टिक स्टैंडिंग वेव बन रही है उसकी जो velocity है that is denoted by small v, and nu is the frequency, d nu is the frequency range. frequency range कहाँ से कहाँ तक जा रही है, nu to nu plus d nu. अगर यहाँ पर मेरी frequency nu है, यहाँ पर न्यू प्लस डी न्यू है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है मेरी दिस इज डी न्यू. इसी तरीके से जैसे हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में किया था वहां पे हमने जीपीडीपी निकाला था, उसी तरीके से यहाँ पर जेड न्यू डी न्यू है ना. ये जो फोर्थ एजम्पशन है ना, अभी बेसिकली हो सकता है तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा हो ढंग से, पर जब हम डेंसिटी ऑफ मोड्स का डेरिवेशन करेंगे तब ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी. तो ये जो हम डेरिवेशन करेंगे डेंसिटी ऑफ मोड्स का, ये डेरिवेशन करने के लिए हम सबसे पहले 1 डायमेंशनल सिस्टम लेंगे, उसके बाद हम इसको 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है. डी बाय में बस सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं अब इस डेरिवेशन में, ये चेंजेस सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि अब हम
एटम्स को इंडिपेंडेंट नहीं ले रहे, दे आर कपल्ड। कपल्ड मोशन की वजह से इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। अब हमारा जो मेन मोटिव होगा वो इन इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स की एनर्जी निकालना होगा। इसकी एनर्जी जब हमें मिल जाएगी तो हम इंटरनल एनर्जी सॉलिड की निकाल सकते हैं, वो हमें मिल जाएगा तो हम स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमें जेड न्यू डी न्यू जो है ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है in any frequency range, let's say nu and nu plus d nu। जब हमें न्यू और न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स मिल जाएंगे, फिर हम ओवर द इंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज इसे इंटीग्रेट करके टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स जो है वो निकाल सकते हैं ओवर द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज। तो उसके लिए सबसे पहले हम जेड न्यू डी न्यू निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट, सिंप्लिसिटी के लिए वी शैल कंसीडर वन डायमेंशनल कंटिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L which is fixed at both ends and it's vibrating in a longitudinal mode। तो हम सबसे पहले एक सबसे सिंपलेस्ट वन डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव ले रहे हैं कि हमने दो एंड पे फिक्स किया और हमारे पास ये स्ट्रिंग है विच इज हैविंग द लेंथ कैपिटल L। ठीक है, एंड दिस स्ट्रिंग जो है इट इज अंडरगोइंग द वाइब्रेशंस इन लॉन्गिट्यूडनल मोड, दैट मींस कंप्रेशंस इन रेयर फ्रैक्शंस बनेंगे। यहाँ पर जो है इसका वाइब्रेशन हो रहा है इन लॉन्गिट्यूडनल मोड। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग का एट एनी पॉइंट x एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट इज u, एंड द वेव इक्वेशन, दिस इज द वेरी फेमस वेव इक्वेशन। ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर में, वहां पे ऑलरेडी मैंने इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कराया था जब हमने डिराइव किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमने डिफरेंट इक्वेशंस निकाली थी, तो वहां पर हमने इस वेव इक्वेशन का यूज करा था। तो यू हैव टू डायरेक्टली यूज दिस वेव इक्वेशन विच सेज दैट del 2u over del x square is equal to 1 upon v square into del 2u upon del t square, where v is the velocity of propagation of the wave in the string। ठीक है, now as both the ends of the string are fixed, now ये जो हमारी वेव इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन होता है given by this equation। u is the solution of the wave equation 5.16 which is equal to capital A sin n pi x upon capital L into cos 2 pi nu into t। अब ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आया है 5.17 का, ये तुम्हें डायरेक्टली याद करना होगा। दिस इज द स्टैंडिंग वेव सोल्यूशन। कोई भी स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं उसका सोल्यूशन जो है इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 17 where n is a positive integer greater than equal to 1। इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने डी बाई के 4 एजम्पशंस लिए। अब जो फोर्थ एजम्पशन हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स हैं इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू इज गिवन बाय दिस इक्वेशन जेड न्यू डी न्यू विच इज जेड न्यू डी न्यू डिवाइडेड बाय v divided by volume is known as the density of modes। अब हमें इस density of modes को डिराइव करना है। उसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम वन डायमेंशन में इसको डिराइव करेंगे, फिर हम एक्सटेंड करेंगे 3 डायमेंशंस में। तो वन डायमेंशन में हमने जो स्टैंडिंग वेव है उसकी इक्वेशन लिख ली बाय इक्वेशन नंबर 16, फिर हमने उसका सोल्यूशन लिख लिया बाय इक्वेशन नंबर 17। अब यहाँ पर देखो, अगर इक्वेशन नंबर 17 इक्वेशन नंबर 16 का सोल्यूशन है, इसका मतलब ये जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो ये इसका सोल्यूशन है जब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको अगर 2 बार डिफरेंशिएट करें, दैट मीन्स अगर हम निकालें, इसको तुम अपनी कॉपी में भी करके देखना, व्हाट इज del 2u over del x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 17 को डबल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x,
डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एक्स का साइन के अंदर है, एक बार जब डिफ्रेंशिएट करोगे ये होगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एन पाई बाई एल, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करोगे फिर से एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एन पाई अपॉन एल, तो एन पाई अपॉन एल 2 बार हो गया और बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स जो मिला के यू बना देंगे, तो हमारे पास डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा। ये जो डेरिवेशन है हमारा ये बहुत लेंदी डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर एग्जाम में टाइम कम होता है तो कुछ स्टेप्स को स्किप कर देना, ठीक है। सिमिलरली डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर क्या होगा, we'll have to differentiate equation 5.17 with respect to time t. Okay, so what we have to find now, del 2u over del t square. जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो टाइम का कंपोनेंट सिर्फ कॉस के अंदर है, तो एक बार जब डिफरेंशिएशन होगा देन आई विल गेट माइनस साइन 2 पाई म्यू एन इंटू टी इंटू 2 पाई म्यू एन, फिर मैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास आ जाएगा साइन 2 पाई न्यू एन टी इंटू 2 पाई न्यू एन, तो मेरे पास फाइनली डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर म्यू एन स्क्वायर इंटू यू, where what is u, u is a sin n pi x upon l into cos 2 pi nu n into t, ठीक है। तो यहां से आई गेट डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर। इसको तुम अपनी बुक में डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो और वहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि ये टर्म्स कैसे आई हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज टू एक्सप्रेशंस इन द वेव इक्वेशन। डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है हमारा माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू यू, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू एन स्क्वायर इंटू यू। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसल आउट होंगे, यू भी कैंसल आउट होगा, माइनस साइन भी कैंसल आउट होगा। Then I substitute these two expressions in this equation 5.16. अब सब कुछ स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं on both sides, then equation 5.16 को I can write as n pi by l is equal to 2 pi nu n divided by v स्क्वायर था, तो वो मेरा हो गया v। तो यहां से what I get, I can get the expression of the linear frequency nu n and it comes out to be nv upon 2 into L, pi will cancel out from both the sides. So this is the final expression of mu n that we have obtained using the very general wave equation given by equation 5.16. where v is representing the velocity of propagation of the wave in the string. यही एक्सप्रेशन देखो इनकी डिराइव करके आई है, जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया कि हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई स्टैंडिंग वेव्स की या उस स्ट्रिंग की जो उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है एटम्स को, ठीक है। वो स्ट्रिंग जो है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट अ स्टैंडिंग वेव, जो क्यों जनरेट हो रही है, विच इज जनरेटिंग बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। वन डायमेंशनल केस में हमने क्या लिया था कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ L विच इज अंडरगोइंग वाइब्रेशन, और ये जो स्ट्रिंग है इट इज फिक्स्ड एट बोथ दी एंड्स, ठीक है, एंड दिस इज वाइब्रेटिंग इन अ लॉन्गिट्यूडनल मोड। तो यही केस हमारा सॉलिड में भी है, बस इतना फर्क है वो वन डायमेंशनल नहीं है, वो 3 डायमेंशनल सिस्टम है। तो वन डायमेंशनल सिस्टम में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई वो nv अपॉन 2l आई।
So this equation 5.18 it shows the frequency of the string. और ये जो n की values है ये क्या है? This is greater than equal to 1. That means n is a positive integer having the values greater than equal to 1. So n can take the values n is equal to 1, 2, 3 and so on. So this shows कि ये जो string है which is undergoing longitudinal vibrations, ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो वाइब्रेशंस है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है. ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, सारी वैल्यूज नहीं ले सकता म्यू. ये कौन सी वैल्यूज लेगा? v/12, 2v/12, 3v/12, 4v/12, 5v/12 and so on. So these are not continuous, they have discrete values which are integral multiple of v/2l. एक बार v/2l है, then 2v, 3v, 4v, 5v and so on. So it shows that the frequency है string की, this equation shows that the frequency है string की that is directly proportional to n. ठीक है, this is directly proportional to n. So frequency of the string varies directly with n, that is frequency spectrum of the continuous string is discrete, and so in such a case the frequency spectrum corresponding to infinite number of parallel lines equidistant from each other is shown in the figure 5.4 which is this one. ये क्या कहता है? ये कह रहा है देखो string तो हमारी continuous है which is having the length L, लेकिन ये जो string है this is undergoing longitudinal vibrations. तो उस vibrations की जो frequency है string की that is not continuous, that is discrete. String continuous है but frequency जो है वो discrete है. तो हम इसका जो frequency spectrum बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा वो इन्होंने figure 5.4 में दिया है. देखो म्यू एन हमारा क्या है? nv/2l है, तो n हमारा क्या हो गया? 2l into mu n upon v. So if I differentiate it, dn मेरे पास क्या हो गया? 2l upon v into d nu n. d nu n हमारा क्या है? और dn हमारा क्या हो गया? It is representing the number of modes which are lying in the frequency range nu and nu plus d nu. ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है z nu d nu. Z nu d nu हमारा क्या है? This is also the number of vibrational modes in the frequency range nu and nu plus d nu. बस ये 3 dimensions में है और ये हमारा 1 dimension में आया, पर ये यही represent कर रहा है. It is the number of possible vibrational modes in the frequency range nu and nu plus d nu, or you can say in the frequency interval d nu. जैसे सपोज मेरा यहाँ पर न्यू है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर न्यू प्लस डी न्यू है, या लेट्स से यहाँ पर न्यू प्लस डी न्यू है, यहाँ पर 1 सेकेंड, सपोज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस डी न्यू है. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? दिस कंप्लीट रीजन, दिस इज द फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू. तो इस फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू के बीच में कितने नंबर ऑफ मोड्स हैं? वो हमारा होगा डी एन. ठीक है, और 3 डायमेंशन में वो होता है जेड न्यू डी न्यू, इसलिए यहाँ पर जो है इसको जेड न्यू भी लिख सकते हैं. तो हर एक फ्रीक्वेंसी इंटरवल पे हर एक न्यू पर हमारे पास एक एन की वैल्यू है, तो वो हमने यहाँ पर ऐसे बाय लाइन प्लॉट कर दिया. ठीक है, ये तो 1 डायमेंशन में है. अब हमें क्या देखना है? फाइनली हमें जो निकालना है वो 3 डायमेंशनल में निकालना है. सो वी विल नाउ एक्सटेंड आवर रिजल्ट टू दी 3 डायमेंशन. कैसे एक्सटेंड करेंगे? 3 डायमेंशनल केस में जो हमारी वेव इक्वेशन थी, 1 डायमेंशन में हमने वेव इक्वेशन क्या लिखी थी? del 2u over del x square is equal to 1 upon v square into del 2u over del t square. अब x के साथ साथ y और z के भी कंपोनेंट होंगे, तो del 2u over del x square जो है 3 डायमेंशंस में वो हमारा क्या हो जाएगा? del square u, जो हमारा लेप्लाशियन ऑपरेटर होता है. ये हमने उसमें भी पढ़ा है श्रोडिंगर इक्वेशन में भी कि कैसे हम 1 डायमेंशनल केस को 3 डायमेंशनल में एक्सटेंड कर सकते हैं. ना ये जो del square न्यू है इसको वी कैन राइट एज del 2u over del x square.
plus del 2u over del y square plus del 2u over del z square, and this is equal to 1 upon v square into del 2u over del t square. पहले हमारा u था फंक्शन x और t का, अब हमारा जो u है वो फंक्शन हो गया x, y, z और t का. So this is the wave equation in 3 dimensions. Now, so what will be the solution of this equation in 3 dimensions? सिर्फ x के साथ साथ अब y और z के भी कंपोनेंट आ जाएंगे. ये टर्म हमारी एज इट इज रही a sin n pi x upon l. n की जगह अब nx हो जाएगा. nx मतलब हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स करस्पॉन्डिंग टू x डायमेंशन. देन हमारा ny pi y upon l हो गया, nz pi z upon L हो गया. So this equation number 21, this is the solution of equation number 20. We have just simply extended the one dimensional result to the 3-dimensional case. सिर्फ x की जगह now we have considered 3 coordinates x, y and z. So we have 3 positive integers nx, ny and nz, and these are greater than equal to 1. अब हम क्या निकालेंगे, जैसे हमने पहले न्यू एन निकाला था, फ्रीक्वेंसी निकाली थी, उसी तरीके से अब हम यहाँ पर करेंगे. फर्स्ट वील डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x 2 times, then we'll differentiate with respect to y 2 times, then we'll differentiate with respect to z 2 times, and then we'll differentiate with respect to time t 2 times, and then we'll substitute del 2u over del x square, del 2u over del y square, del 2u over del z square and del 2u over del t square in the equation 5.20, which is this equation. तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे. इस पूरी 21 इक्वेशन में x का कंपोनेंट सिर्फ साइन के अंदर है, तो ये 2 बार डिफरेंशिएट होगा, बाकी रेस्ट कांस्टेंट रहेंगे. तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा cos n pi x upon l into n pi upon l. फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cos n pi x upon l into n pi upon l. तो इसको खुद से भी डिफरेंशिएट करके देखना, फिर पता चल जाएगा ये कैसे आया. तो ये वाली जो टर्म्स है ये तो सारी कांस्टेंट है, ये हमने एज इट इज लिख दी. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने 2 बार विद रिस्पेक्ट टू x. साइन का डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है विद रिस्पेक्ट टू x. माइनस साइन आया nx पाई अपॉन l का होल स्क्वायर आया इंटू साइन n पाई y, सॉरी इंटू साइन, यहाँ पे देखो गलत कर रखा है, यहाँ पर इसको x लिखो, यहाँ पर y लिखो. ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना सर, यहाँ पे इन्होंने गलती कर रखी है. तो अब हमारे पास ये पूरी टर्म क्या है, दिस इज नथिंग बट u. तो हमारा del 2u over del x square हो गया माइनस nx pi upon l whole square into u, where u is the function of x, y, z and t. Now if I double differentiate with respect to y, I get this minus ny pi upon l whole square into u. If I double differentiate with respect to z, I'll get this minus nz pi upon l whole square into u. Then I'll differentiate with respect to time 2 times. एक बार डिफरेंशिएट करोगे, टाइम का कंपोनेंट यहाँ है, तो आएगा माइनस साइन 2 पाई न्यू इंटू टी इंटू 2 पाई न्यू. फिर करोगे साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगा कॉस 2 पाई न्यू इंटू टी इंटू 2 पाई न्यू. तो हमारे पास माइनस 2 पाई न्यू इंटू 2 पाई न्यू रहा, माइनस 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इंटू यू. खुद से करके देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा. Now we will substitute all these values in the general equation of the wave, which is equation number 5.20. तो दोनों साइड से हमारा जो u होगा वो कैंसल आउट होगा और हमारे पास क्या बचेगा, nx पाई अपॉन l का होल स्क्वायर प्लस ny पाई अपॉन l का होल स्क्वायर प्लस nz पाई अपॉन l का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर. माइनस साइन सारे कैंसल आउट हो जाएंगे और u जो है वो भी कैंसल आउट होगा फ्रॉम बोथ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. नाउ वी नो दैट c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है अगर c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, और c की जगह अगर हमारे पास कोई और वेलोसिटी है तो न्यू इंटू लैम्डा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू
v, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, तो न्यू स्क्वायर कैंसल आउट होगा फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में वी विल हैव लैम्डा स्क्वायर, तो वी विल गेट राइट हैंड साइड एज 4 pi square upon lambda square after substituting new lambda equal to v. This is the very common expression. You have come along with this expression when you have studied your optics and all. Now, in the left hand side, we can take pi square upon L square common. So we can have in brackets nx square plus ny square plus nz square, and that is equal to 4 pi square upon lambda square, or we can write as 4 pi square nu square upon v square. now ये जो pi square है ये cancel out होगा दोनों तरफ से, और ये जो L square है इसको we can take to the numerator of right hand side, or in this expression. So we get nx square plus ny square plus nz square is equal to 4L square nu square upon v square, and that is also equal to 4L square upon lambda square. कैसे भी लिख सकते हो ना. अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई of the number of possible modes of vibrations. वन डायमेंशन में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आई थी, ये आई थी. वहां पे सिंगल n था क्योंकि वन डायमेंशन है, यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो n नहीं होगा. वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स, सो वी हैव nx, ny एंड nz, और उसकी फॉर्म जो आई दैट इज गिवन बाय इक्वेशन 5.22. दिस इज द वेरी कॉमन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स. So this equation gives the possible modes of vibrations. Now ये जो nx, ny, nz है ये सारे हमारे positive integers हैं which can take the values greater than equal to 1. तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस 22 equation की help से we have to find the value of z nu d nu. That means we have to find the possible modes of vibrations in the frequency range nu and nu plus डी न्यू. एक पर्टिकुलर न्यू के लिए हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है. हमें एक फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन. वो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो इस तरीके से. इसको मैं अगर प्लॉट करूं इक्वेशन 22 को, ठीक है, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, x, y एंड z 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं. लेट्स से x एक्सिस के अलोंग nx है, y एक्सिस के अलोंग ny है, z एक्सिस के अलोंग nz है. तुमने ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ स्फीयर पढ़ा है. इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. अब इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्फीयर से कंपेयर करो. x स्क्वायर की जगह वी कैन राइट nx स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह वी कैन राइट ny स्क्वायर, z स्क्वायर की जगह वी कैन राइट nz स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर व्हिच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो हियर r स्क्वायर इज 4L स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर बनाती हूँ, ठीक है, तो ये जो स्फीयर है इस जब यहाँ पे x, y और z होता है तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. यहाँ पे इसको कैपिटल R ले रखा है तो मैं कैपिटल R ही लेती हूँ, ठीक है. अब x की जगह जो हमने कोऑर्डिनेट है nx रखा है, y की जगह ny, z की जगह nz. तो अब जो ये स्फीयर है इसकी इक्वेशन क्या होगी, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है. तो जो रेडियस वेक्टर है r फ्रॉम द ओरिजिन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर. इसको करेक्ट करो, दिस इज nz स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन इंटीग्रल स्पेस. यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी है ताकि तुम्हें समझ में आए. नाउ तो अब रेडियस क्या हुआ अगर मैं इस इक्वेशन 22 और इक्वेशन 23 को कंपेयर करूं. दिस रेडियस r स्क्वायर इज नथिंग बट 4L स्क्वायर न्यू स्क्वायर इनटू v स्क्वायर. तो व्हाट इज r, 2L अपॉन v इनटू न्यू. इफ आई डिफरेंशिएट इट तो dr मेरे पास आ गया 2L अपॉन v इनटू d न्यू.
Since each point occupies on the average a unit volume in integral space, the number of points in the spherical shell between the radius r and r plus dr is equal to the volume of an octant of spherical shell in integer space. That is 1/8 into the volume of spherical shell. इसका मतलब क्या है? इस तरीके का डेरिवेशन मैंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी कराया था जब मैंने जीपीडीपी डिराइव किया था. यहाँ पे हम जेड न्यू डी न्यू डिराइव कर रहे हैं. ठीक है, हमें क्या मिल गया? हमें आर मिल गया विच इज 2l न्यू अपॉन वी. दैट मीन्स हमें स्फेयर का रेडियस मिल गया. अगर मैं यहाँ पे एक और स्फेयर बना दूं, ठीक है, लेट्स से ये जो स्फेयर है इसका रेडियस है r प्लस डी आर. ठीक है, एक स्फेयर है उसका रेडियस r है, फिर एक और स्फेयर बनाया उसका रेडियस r प्लस डी आर है. तो ये जो गैप है हमारा ये कितना हो गया? दिस गैप इज डी आर. ठीक है, और nx ny nz जो हैं, जो हमारा पर्टिकुलर केस है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस. So they can have only the positive values greater than equal to 1. तो इस पूरे स्फीयर में से कितना पोर्शन जो है हमारे लिए यूजफुल है? देखो, इस r रेडियस पे हमारे को वैल्यू मिल गई, ये है. ठीक है, r की वैल्यू, r प्लस डी आर की भी फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं. हमें क्या निकालना है? अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस lying in the radius range r and r plus dr. nx ny और nz जो है इसके डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे. यहाँ पे भी होंगे, हर जगह होंगे. हर एक पॉइंट जो है उसका एक कोऑर्डिनेट होगा. यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0 0 0. यहाँ पर अगर पॉइंट है, अगर लेंथ अगर 1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 0 0. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. हर एक पॉइंट की एक nx वैल्यू होगी, एक ny और एक nz. nx ny और nz का कॉम्बिनेशन जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे वो एक पर्टिकुलर हमारा मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू के लिए. तो हमने r और r प्लस डी आर के बीच में देखने हैं कितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं. दैट मीन्स कितने पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं. वो हम कैसे निकालेंगे? nx ny और nz जो है इनकी वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए. तो इस पूरे स्फीयर में से ऐसा कितना पोर्शन है इस स्फेरिकल शेल का, r और r प्लस डी आर के बीच में जो ये स्फेरिकल शेल है, इसका कितना पोर्शन हमें पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देगा? कौन सा देगा? वो देगा 1/8 इंटू द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल. टोटल वॉल्यूम स्फेरिकल शेल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. ये मैंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बताया था, कैसे आया मैं एक बार दोबारा बता दूंगी. ठीक है, अब ये 1/8 का कंपोनेंट क्यों आया है ये समझने वाली बात है. देखो, nx ny nz जो है इसकी पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है. तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? nx ny nz माइनस nx माइनस ny माइनस nz. एक को माइनस कर दो, माइनस nx ny nz, nx माइनस ny nz, nx ny माइनस nz, देन माइनस nx माइनस ny nz जब दो नेगेटिव है, nx minus ny minus nz, then minus nx ny minus nz. So we have in total of 8 combinations. ठीक है, तो पूरे स्फेरिकल शेल का 1/8 पोर्शन जो है वो पोर्शन होगा जिसमें nx ny और nz तीनों पॉजिटिव हैं. तो ये जो वॉल्यूम है ऑक्टेंट ऑफ स्फेरिकल शेल, दैट इज 1/8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. ये वॉल्यूम हमें देता है नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन लाइंग इन द रेडियस रेंज r एंड r प्लस डी आर. ठीक है, बिकॉज हर एक पॉइंट जो है इट विल करस्पॉन्ड टू अ सेट ऑफ 3 इंटीजर्स nx ny and nz. So each set determines a possible mode of vibration according to equation 5.22. एक कॉम्बिनेशन जो होगा, सपोज 0 तो हो नहीं सकता, सपोज 2 1 1.
211 कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक मोड ऑफ वाइब्रेशन है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए। तो हमें ये देखना है कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हो सकते हैं, दैट मींस कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, दैट मींस उस स्फेरिकल शेल में कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट एक वैल्यू देता है nx, ny और nz की, और हम उस पूरे स्फेरिकल शेल में से भी सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जिसमें nx, ny और nz तीनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो हमारा ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेंट आ गया स्फेरिकल शेल का 1/8 इंटू 4πr² dr। अब इसमें क्या समझना है कि ये वॉल्यूम कैसे आया। देखो, इस पूरे वॉल्यूम में से अगर मैं ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं, देन आई विल गेट दिस वॉल्यूम। इसको 1/8 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आ जाएगा। तो पूरा जो स्फेयर है जिसका रेडियस r प्लस डी आर है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r प्लस डी आर होल क्यूब। इसको मैं माइनस करूंगी फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस r, दैट मीन्स 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया स्फेरिकल शेल का। 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक क्या हो गया 3r² dr प्लस 3r dr स्क्वायर। ठीक है, माइनस r क्यूब ये वाला जो है। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो हमने गैप लिया है, ये जो dr हमने लिया है, दिस dr इज वेरी स्मॉल। ये जो दोनों स्फेयर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पास है एक दूसरे के, दिस dr इज वेरी स्मॉल। अगर dr स्मॉल है तो उसका क्यूब भी स्मॉल होगा, स्क्वायर भी स्मॉल होगा। So we can neglect the second order and third order term in comparison to dr. We can neglect the squares and cubes in comparison to dr. तो मेरे पास क्या रह गया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मेरे पास बचा 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² dr। 3 कैंसिल आउट होगा एंड आई गेट 4πr² dr जो यहाँ पे लिखा है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल 4πr² dr। Now substitute the value of r। r हमारा क्या आया था 2l nu अपॉन v, और dr हमारा था 2l d nu अपॉन v। सब्स्टिट्यूट बोथ द वैल्यूज, यहाँ पे बेटा r स्क्वायर आएगा। So this is what is the volume of octant of spherical shell. This is representing the number of modes of vibrations lying in the radius range r and r plus dr. That means यहाँ पे इसको करेक्ट करो, ये हमारा है zr dr, number of possible modes of vibrations lying in the radius range r and r plus dr. Now substitute the values of r and dr, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये z न्यू डी न्यू बन गया क्योंकि अब हम राइट हैंड साइड को न्यू के टर्म्स में लिख रहे हैं। So now we get the number of modes of vibrations lying in the frequency range nu and nu plus d nu। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया 4πl cube nu square d nu upon v cube। And L cube is nothing but the volume of the solid which is considered to be cube. So let it be equal to V. So number of modes of vibrations lying in the frequency range nu and nu plus d nu, they are Z nu d nu equal to 4 pi. This is not nu, this is V, the volume. 4 pi V upon V cube into nu square d nu, जो हमें derive करना था। This V is the volume of the solid, V is the velocity of the propagation of the wave। तो हमारे पास फाइनली ये Z न्यू डी न्यू आ गया जो हमें निकालना था डी बाय मॉडल में। अब इसकी हेल्प से we'll find the internal energy of the solid। तो इंटरनल एनर्जी जो है सॉलिड की वो हम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे।
अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो अब हमने क्या देखा, वन डायमेंशन में तो जो फ्रीक्वेंसीज थी वो डिस्क्रीट आ रही थी, जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन थे एन वो डिस्क्रीट थे। थ्री डायमेंशन में ये एक कंटिन्यूम बन रहे हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है अगर मैं जेड न्यू और न्यू के बीच में प्लॉट करूं देन आई विल गेट जेड न्यू क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। तो एज न्यू इज इंक्रीजिंग जेड न्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग since z nu is proportional to nu square. So this is now the plot of z nu and nu in 3 dimensions. So in 3 dimensions, the frequency spectrum is a continuum. This is similar to electromagnetic waves in a box of volume V. तो यहाँ पे हमारे पास z nu d nu आ गया। अब अगर हमें डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ मोड्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस लाइंग इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी ऑफ मोड्स। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये हो जाएगा 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन वी क्यूब, ये वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो वो होगा डेंसिटी ऑफ मोड्स। नाउ अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि इन जनरल हमारे पास 2 तरीके की इलास्टिक वेव्स होती है। हमने क्या कहा कि जो सारे एटम्स है वो एक दूसरे के साथ कपल्ड है, हर एक का जो इंडिपेंडेंट, हर एक का जो वाइब्रेशनल मोशन है वो दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स विच आर इलास्टिक इन नेचर। और सबको पता है जो इलास्टिक वेव्स हैं जो सॉलिड में अकर होती हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, ठीक है। तो लेट्स से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी वेलोसिटी VL है और जो ट्रांसवर्स वेव्स है उसकी वेलोसिटी V विद द सबस्क्रिप्ट T है। तो VT is representing the velocity of transverse wave, VL is representing the velocity of longitudinal wave. अब देखो ट्रांसवर्स वेव में भी we have 2 perpendicular directions of polarization, ठीक है। क्यों, एक क्या होगा, एक तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक कौन सी होगी, विद इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है हमारे पास। यहाँ पे मैं 3D पिक्चर कैसे बनाऊं, इसको इमेजिन करो, अगर मेरे पास ये लाइन है तो इस लाइन को एक अगर फिंगर को तुम रखो एज अ लाइन, दिस लाइन, तो इस फिंगर पे तुम कितनी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बना सकते हो, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बना सकते हो, एक तो ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक विद इन द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, ठीक है। सो वी हैव 2 डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑफ पोलराइजेशन। तो ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास 2 हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव 1 है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास 26, इसको वी कैन राइट एज, इसको एज इट इज रखोगे 4 पाई V इंटू न्यू स्क्वायर डी न्यू एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन V क्यूब जो है उसको अब हम स्प्लिट कर देंगे 2 वेलोसिटीज में, एक हो गया 1 अपॉन VL क्यूब प्लस दूसरा हो गया 2 अपॉन VT क्यूब। इसको ठीक करो, यहाँ T है, ठीक है। हमारे पास एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं पोलराइजेशन की फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। तो 2 ट्रांसवर्स वेव्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसलिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। और ये V नहीं है, दिस इज न्यू, फ्रीक्वेंसी है न्यू स्क्वायर डी न्यू। बहुत गलतियां हैं इसमें, जो मैं बता रही हूँ उसको करेक्ट करते रहना साथ के साथ। So this is the final expression of the number of modes of vibrations lying in the frequency range nu and nu plus d nu। कि जो सॉलिड है उसके अंदर जितनी भी स्टैंडिंग वेव्स हमारी बन रही हैं उनके कितने पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं इन दी फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, और दोनों नेचर को कंसीडर किया है, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डी बाय अप्रोक्सीमेशन क्या है और उसकी हेल्प से वील डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी देन स्पेसिफिक हीट। दिस वील डू इन नेक्स्ट